وہ آنکھیں بند کیے دراز تھی۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہتی تھی لیکن نشہ آور دوائیوں کے زیر اثر اسے پلکیں جدا کرنا دشوار معلوم ہو رہا تھا۔ یکایک اسے اپنے رخسار پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، ٹھنڈا سا لمس۔ وہ ہاتھ اب رخسار سے پھسل کر اس کی زخمی گردن پر آ ٹھہرا تھا اور پھر اسے کسی کی گرم سانسیں اپنے کان کے بےحد قریب محسوس ہوئی تھی۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ بی ہیپی 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 اینڈ سیز دا ڈے آف پلیجر، کوئی اس کے بے حد قریب آہستگی سے گنگنایا تھا۔ اسے اپنا جسم پسینے میں شرابور ہوتا محسوس ہوا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا جسم واقعتاً پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ رخسار پر وہ دہکتا لمس اب تک موجود تھا۔ اسے اپنی گردن ان دیکھے لمس تلے سلگتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک خواب تھا، ہاں بس ایک خوفناک خواب۔ اگلی دفعہ اس نے آنکھیں کھولیں تو ہسپتال کی بے داغ سی اونچی سفید چھت نگاہوں کے سامنے لہرائی۔ اسے آنکھیں کھولنے میں دشواری سی ہو رہی تھی، پلکیں کسی ان دیکھے بوجھ تلے دبی معلوم ہو رہی تھی۔ آہستگی سے پلکیں چھپکتی، وہ ہاتھوں پر زور دیتی اٹھنے ہی لگی تھی کہ کسی کی آواز پر چونک کر رک سی گئی۔ لیٹی رہو، ڈاکٹر نے ابھی اٹھنے سے منع کیا ہے۔ یوول تھا، پاس چلا آیا، پھر اسے تکیوں کا سہارا دیتا ٹھیک سے بٹھانے لگا۔ سیلینا کو تھوک نکلتے ہوئے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ گردن پر موجود زخموں میں جلن ہوئی تو وہ کراہی، کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ یوول کی فکرمند سی آواز پر اس نے محض سر ہلایا تھا۔ وہ کئی دنوں سے کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی تھی اور اسی لیے اسے اس لمحے شدید کمزوری کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر یک لخت ہی چونک کر آس پاس دیکھا۔ ہسپتال کا کمرہ سفید کمکموں سے روشن تھا اور کھڑکی کے پار موجود شام ڈھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے حیرت سے یوول کی جانب دیکھا تھا۔ اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ میں کب سے ہوں ہاسپٹل میں؟ اسے حملہ یاد تھا، حملہ آور بھی یاد تھا، اسے وقت اور جگہ بھی یاد تھی۔ تم شوق کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے مکمل آرام کی غرض سے نشہ آور دوائیاں دی تھیں، اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی۔ وہ اب کرسی کھینچے اس کے بستر کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، پھر آنکھوں میں ٹھہرے و نرمی لیے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے ایک ہی دن میں بے حد مزمل محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے زور لگا کر کہا۔ حلق میں تکلیف سی ابھری۔ دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن میں ہی کتنی کمزور ہو گئی ہو تم۔ نظر بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ تمہارا وزن بہت زیادہ لوز ہوا ہے۔ اتنی جلدی، اتنی تیزی سے وزن گرنا اچھی بات نہیں ہوتی، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ایٹنگ ڈس آرڈر، بس 2 لفظ کہے تھے اس نے۔ یوول کو اس کی نفسیاتی کمزوریوں کے بارے میں علم تھا۔ جب وہ اس کے لیے کام کرتا تھا تب اسے معید کے پاس بھی وہی لے کر جاتا تھا۔ ڈاکٹر معید سے بات کی تھی، پیٹرن بہت مضبوط ہو گیا ہے، پھر سے توڑنے کے لیے بہت محنت اور توجہ درکار ہے۔ اس کی تھکن زدہ سی آواز ابھری۔ یوول کو جانے کیوں دکھ سا ہونے لگا۔ اسکرپٹ کا کیا بنا؟ اس کے پوچھنے پر وہ یکدم ہی سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ شاید اب تمہیں اسکرپٹ نہ مل سکے۔ کیوں؟ باڈی گارڈ یاسر عالم نے کہا ہے کہ تم اسکرپٹ لینے کہیں نہیں جاؤ گی، بلکہ ڈائریکٹرز تمہیں اسکرپٹ دینے خود آئیں گے۔ ایسا چونکہ ممکن نہیں ہے تو شاید وہ رول عمیرہ زاہد کو دے دیا جائے۔ اس نے بے چین سا سانس خارج کیا تھا۔ ایک کام خدا خدا کر کے مل رہا تھا۔ وہ اس آئے ہوئے رزق کو کسی اور کی جھولی میں گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ باڈی گارڈ یاسر، اچھا تو اس کا نام یاسر ہے۔ خیر، وہ کون ہوتا ہے؟ میرے فیصلے لینے والا۔ یہ میرا کام ہے اور مجھے ہی کرنا ہے۔ تم تاریخ طے کرو، میں ان سے اسکرپٹ لینے ضرور جاؤں گی۔ تکلیف اب قدرے کم ہو گئی تھی۔ فکر معاش لاحق ہوئی تو ہر تکلیف دھول بن کر انکا ہوتی محسوس ہونے لگی۔ وہ ایک طرح سے ٹھیک کہہ رہا ہے، تم پر ایک رات پہلے بھی حملہ ہوا تھا۔ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی یوول، میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ میں کماؤں گی نہیں تو کھا بھی نہیں سکوں گی۔ میں نے سب کچھ چھوڑ کر اس زندگی کو اپنایا تھا، میں اسے ایسے نہیں گنوا سکتی، وہ جذباتی ہوئے بغیر صاف لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کبھی کبھی یوول کو لگتا تھا کہ سیلینا جتنا کوئی سمجھدار نہیں اور کبھی کبھی اسے اس جتنا بے وقوف بھی کوئی نہیں لگتا تھا۔ میں تمہیں کام چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا، لیکن ہم تھوڑا انتظار تو کر سکتے ہیں نا؟ پچھلے 1 سال سے میں انتظار ہی کر رہی ہوں، مزید انتظار بیکار ہوگا۔ وہ اب بستر پر اٹھ بیٹھی تھی، پھر چونک کر یکدم رک سی گئی۔ لفٹ سے مجھے ہاسپٹل تم لے کر آئے تھے؟ اس کے پوچھنے پر یوول جو سیدھا ہو رہا تھا ٹھہر گیا، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ یاسر عالم، وہ اس کے جواب پر حیران ہوئی تھی، پھر پیر نیچے اتارتے ہوئے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ لا علمی کے باعث یوول نے محض کندھے اچکائے تھے۔ تمہیں ہاسپٹلائز کرنے کے بعد مجھے ایک کال موصول ہوئی کہ تم یہاں ہو۔ جب میں آیا تو تم نرس کے زیر نگرانی بھی ہوش تھی۔ وہ میرے آنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا، لیکن وہ پہلی دفعہ میرے اپارٹمنٹ آیا ہی کیوں تھا؟ وہ الجھ رہی تھی۔ یوول بھی اب اس کے ساتھ ہی اٹھ رہا تھا۔ تمہارے ہاسپٹل کا بل بھی پے کر دیا گیا تھا۔
डॉक्टर्स को खास हदायत भी दी गई थी कि मेरे अलावा तुम्हारे कमरे में किसी को भी दाखिल ना होने दें। इट्स जस्ट अ बॉडीगार्ड थिंग, यू नो। यकायक इसका फ़ोन बजने लगा तो वह इस तरफ को मतवज्जो हुआ। सेलिना अब झुककर अपने सैंडल के स्ट्रैप्स बंद कर रही थी। बालों को दोनों हाथों से जूड़े में गूंथती वो यूविल के चौंके हुए चेहरे को बगौर देख भी रही थी। मैं अभी नहीं आ सकता नज़र भाई, सेलिना अकेली है, इसने दबी दबी सी आवाज़ में दांत कुचकुचा कर कहा, लेकिन वो इसे सुन चुकी थी। गहरा सांस लेकर वो उठी और इसके सामने जा खड़ी हुई। वो सुर्ख चेहरे के साथ राब्ता मुनक़ता कर रहा था, फिर खफीफ सा सर उठाकर इसे देखा। क्या हुआ? नज़र भाई बुला रहे हैं? हाँ, इसे ना चाहते हुए भी जवाब देना पड़ा। सेलिना ने नरमी से मुस्कुराकर इसके कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंका। यूविल, मेरे अलावा भी तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल हैं, खुद को मुझ पर ज़ाया मत करो। जाओ, मैं चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हारे पास कार भी नहीं है। इसे जैसे सेलिना की बात पसंद नहीं आई थी। मैं पैदल जा सकती हूँ, थोड़ा सा तो रास्ता है, जानते हो ना, मैंने बड़े और कठिन रास्ते अबूर किए हैं। जाओ। और मेरा साहिद के काम में कोताही का मतलब जानते हो ना। और अब कि वो पूरा सुर्ख हो गया था। आह, सेलिना को पता था कि नज़र इसे उमेरा के काम के लिए बुला रहा था। आई एम रियली सॉरी। वो मुस्कुराकर सर नफ़े में हिलाती जा रही थी। ये तुम्हारा काम है, अब जाओ और मुझे उस डायरेक्टर से स्क्रिप्ट लेने की तारीख मालूम करके बताओ। तुम स्क्रिप्ट लेने नहीं जाओगी। दरवाज़ा खुला और कोई इसकी बात कतियत से काटता हुआ अंदर दाखिल हुआ। यूविल और वो ठिठक कर दरवाजे की जानिब घूमे थे। वहाँ सुरमई आंखों वाला गार्ड खड़ा था। यूविल ने अगले ही पल जल्दी से खुदा हाफिज कहा और यासिर के साथ से निकल गया। ये फैसला मैं करूँगी, वह हाथ बांध कर बोली थी। यासिर ने लहजा भर को इसे देखा, फिर आगे बढ़ आया। इसके रूम का बारीक बीनी से जायज़ा लेने लगा। सेलिना इसे गर्दन फेरे देख रही थी। क्या यूविल के अलावा कोई यहाँ आया था? इसने रुक कर पूछा तो सेलिना को यकदम वो ख्वाब याद आया। इसने बेसाख्ता ही अपना सिलकता रुखसार छुआ था। वो गुनगुनाता सा लहजा इसे झुरझुरी आई थी। यूविल के अलावा कोई नहीं आया। एक ख्वाब की बिना पर वो इसे शक में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। वो सर हिलाता इसके करीब चला आया। लम्हे पर को निगाहें इसकी निशान सता गर्दन की जाने फिसली। स्क्रिप्ट लेने तुम नहीं जाओगी। तुम किस हैसियत से मना कर रहे हो मुझे? एक गार्ड होने की हैसियत से। तुम मेरे गार्ड नहीं हो, ना मैंने तुम्हें ये हक दिया है। इसने जवाब नहीं दिया। जवाब देना ज़रूरी ही नहीं समझा। खामोशी से दरवाज़ा तिकेलता बाहर की जाने पड़ गया। सेलिना इसके पीछे आ रही थी। एक कंधे पर पर्स भी टंगा था। कमज़ोरी के पास इसे लम्हे पर को चक्कर से आए। तुम मेरे काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। वो खामोशी से आगे चलता रहा। सेलिना को इसके साथ कदम मिलाने में दुश्वारी हो रही थी। मुझे कोई शौक़ नहीं है मुदाखलत करने का, लेकिन एजेंसी की सिक्योरिटी भी किसी चीज़ का नाम है। तुम पर 2 दफ़ा हमला हो चुका है। मज़ीद मुझे कुछ नहीं कहना। इतने सर्द हो तुम, फिर तुम्हारी आंखें कैसे इतनी नरम हैं? वो ठहर कर यकदम ज़ोर से बोली तो यासिर के बढ़ते कदम रुक गए। सेलिना गहरे सांस लेती इसे पीछे खड़ी थी। वो आहिस्ता से पलटा। आबरू लम्हे पर को हैरत से ऊंचे हुए थे। क्या? जब तुमने मुझे बचाया था तब तुम्हारी ये सुरमई आंखें बहुत वार्म लग रही थी, अब इतनी सर्द क्यों लग रही हैं? वो जाने किस बात पर खफा हो रही थी। इसे लगा वो रोने वाली है। सड़क के इतराफ में मौजूद दरख्तों की एक तवील कितार के साथ वो दोनों एक दूसरे से कदरे फासले पर खड़े थे। दरख्तों पर लगे सुनहरे कमकमे लम्हे भर को जल उठे। तुम बचाने की बात कर रहे हो, सिक्योरिटी की बात कर रहे हो और इतने सर्द अंदाज में कह रहे हो कि मुझे रोना आ रहा है। हालांकि हर जगह मशहूर है कि मैं नहीं रोती। हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो जाएं, मैं कभी नहीं रोया करती। इसकी आंखों में बेसाख्ता ही नमी से डुबडुबाई। सब कुछ लम्हे भर को धुंधला गया था। दरख्तों के कमकमे और यासिर का बुलंद सिरापा, सब कुछ नमी के पास धुंधला महसूस हो रहा था। तुम बहुत तेज़ चल रहे हो, मैं तुमसे कदम नहीं मिला पा रही, मुझे चक्कर आ रहे हैं, किसी भी लम्हे बेहोश होकर गिर सकती हूँ मैं। लेकिन तुम इंतहाई उखड़े हुए अंदाज में बातें करते हुए आगे ही आगे जा रहे हो, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहे। क्या गार्ड्स ऐसे होते हैं? इसका दिल किया सड़क का ख्याल किए बगैर बुलंद आवाज़ से रोने लग जाए। वो अंगश्ते बदला इसके ज़ख्मी अंदाज को देख रहा था। बहुत से लोग भी सड़क पर रुक रुक कर इन्हें देखने लगे थे। तुम स्क्रिप्ट लेने के लिए जाने नहीं दे रहे। तुम कुछ नहीं जानते कि काम ना होना किस कदर अजियतनाक होता है। तुम्हारी ऐसी सिक्योरिटी का मैं क्या करूं जब मुझे अपने रिज़्क की फ़िक्र ही ख़त्म कर रही है। इतने ही जेंटलमैन हो तुम तो मुझे खुद क्यों नहीं स्क्रिप्ट ला कर दे देते। सांस पूरी तरह फूल रहा था और वो तेज़ तेज़ कहती जा रही थी। कई महीनों का गुबार था जो इसने यासिर पर निकाल दिया था। सामने खड़े बेतासर से गार्ड के हलक में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। फिर वो आहिस्ते से कदम उठाता इसके जाने पड़ाया। एक फासले पर आकर ठहर भी गया। कम में इसका चेहरा वासिया हुआ था। अब मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो? वो इसके पास आकर खड़ा हुआ तो इसने तेज़ तनफ़्फ़ुस के साथ पूछा। यासिर का चेहरा संजीदा ही रहा। तुम लिफ्ट से अपने अपार्टमेंट तक नहीं जा सकती? हाँ, इसे इसका जवाब समझ नहीं आया था।
तुम पर आज दोपहर में लिफ्ट के अंदर हमला हुआ था। तुम अकेले लिफ्ट से अपने अपार्टमेंट तक नहीं जा सकोगी। इंसान होने के नाते हम 80% ऐसी जगहों पर जाने से एतराज़ बरतते हैं जहां हमारे साथ कोई नागवार हादसा पेश आया हो, लेकिन तुम इस बारे में नहीं सोच रही क्योंकि तुम्हें मुझे कोसने से फुर्सत नहीं मिल रही। और इसके जहन में यकदम ही चुमाका सा हुआ था। वो वाकतन इस वाक़े के बाद लिफ्ट से अपार्टमेंट तक नहीं जा सकती थी। लिफ्ट का सोचकर ही इसका दम घुटने लगा था। लेकिन मैं तुम्हें अकेले सीढ़ियों से भेजने का रिस्क नहीं ले सकता कि मेरी जॉब है, मजाक नहीं है। इसकी संजीदगी इतनी गहरी थी कि सेलिना लम्हे पर को कुछ बोल नहीं सकी। लेकिन तुम क्यों मेरे पीछे सिर्फ इस ख्याल से आओगे कि मैं लिफ्ट से अपने अपार्टमेंट तक नहीं जा सकती? तुम इतने रहमदिल नहीं लगते। मैं इतना रहमदिल हूँ भी नहीं मोहतरमा। ये मेरी जॉब है। जॉब समझती हैं आप? इसे अब शदीद कौफत हो रही थी। इसे वो पूरी तफसीलात दे नहीं सकता था, और वो थी कि अधूरे जवाब पर राज़ी होने के लिए तैयार नहीं थी। क्या तुम वाकई स्टॉकर नहीं हो? वो मशकूक हो चुकी थी। उफ, इसने ज़ब्त से आंखें बंद करके खोली। हर बात आखिर स्टॉकर पर जाकर क्यों ख़त्म हुआ करती थी? वो इसे जवाब दिए बगैर तेज़ी से आगे बढ़ाया था। नहीं नहीं, तुम स्टॉकर नहीं हो सकते। स्टॉकर्स इतने हैंडसम नहीं हुआ करते। ना वो हील्स ला कर देते हैं, ना ही सड़क पर मफलर देते हैं, ना ही क्लब में बचाने आते हैं, ना ही लिफ्ट से बेहोश एक्ट्रेस को गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, ना ही वो बिला वजह की बहस करते हैं। और बदतमीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होते। वो इसके साथ तेज़ी से चलती खुद की यकीन दहानी करवा रही थी। वो इसकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता था। इसका अपार्टमेंट अस्पताल से ज़्यादा दूर नहीं था। शीशे का दाखिली दरवाज़ा धकेल कर वो दोनों एक साथ ही अंदर दाखिल हुए। मैं सीढ़ियों से चली जाऊंगी यासिर, तुम जा सकते हो। वो मज़ीद इसका एहसान नहीं लेना चाहती थी, लेकिन वो तो जैसे इसे सुन ही नहीं रहा था। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो इसने इसे आबरू से अंदर बढ़ जाने का इशारा किया। वो चारों नचार अंदर की जानिब बढ़ ही गई। वो भी अगले ही पल अंदर आया था। अंदर पहले से एक लड़का मौजूद था, स्याह जैकेट में मलबूस। यासिर ने खामोशी से इसे अपनी दूसरी जानिब कर लिया। इसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन वो इसकी आस्तीनों को सख्ती से जकड़े हुए था। पेशानी पर पसीना था और आंखें खौफजदा से अंदाज में बार बार इस जैकेट वाले लड़के की जानिब उठ रही थी। लिफ्ट का रास्ता अबूर करके वो दोनों इसके अपार्टमेंट की जानिब बढ़ आए थे। अंदर दाखिल होकर वो चेहरा फेरे इसकी जानिब मुड़ी। तुम सुबह मेरे अपार्टमेंट क्यों आए थे? कुछ तफसीलात दरकार थी मुझे। कैसी तफसीलात? इसका माथा ठनका। यासिर ने गहरा सांस लेकर सर नफ़ी में हिलाया, गो कि वो इसे बताना चाहता था, लेकिन रात के इस पहर वो इसे मज़ीद खौफज़दा नहीं कर सकता था। अभी नहीं, फिर बात करेंगे इस बारे में। और आज रात अकेली ना रहो तो बेहतर होगा। किसी घर वाले का ठहरना मुनासिब है। इसके कहने पर इसे याद आया कि माँ तो सहेलियों के साथ कैंपिंग करने गई हुई थी। यूविल मसरूफ़ था और सायरा इस शहर में मौजूद नहीं थी। सायरा इसकी बचपन की सहेली थी जो फ़िलहाल काम के सिलसिले में दूसरे शहर में मौजूद थी। यासिर ने इसके खामोश चेहरे को देखा और फिर गहरा सांस लिया। फिर हाथ आगे बढ़ाया तो वह चौंकी। अपना फ़ोन दो। इसने इसे फ़ोन दे दिया। अगले ही लम्हे इसने अपना नंबर महफूज करके फ़ोन इसके जाने बढ़ा दिया था। मेरा नंबर है तुम्हारे पास, कोई एमरजेंसी हो तो कॉल कर सकती हो तुम। कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे? और आखिरकार इसने पूछ ही लिया, इंतहाई सेलिना नुमा सवाल। यासिर को जैसे इसके सवाल पर यकीन नहीं आया था। व्हाट? तुम इतना ख्याल रख रहे हो तो मुझे लगा कि शायद हर ख्याल रखने वाला आपको पसंद करे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझ में क्या ख़राबी है? आधे मुल्क के लड़के मरते हैं मुझ पर। अभी एक कॉल दूं तो कितार लग जाएगी लड़कों की। शायद रंग बालों को छटक कर कहा तो वह इसे देख कर रह गया। दरवाज़ा ठीक से बंद करो। बिला वजह किसी के लिए मत खोलना। कोई भी मशकूक हरकत महसूस हो तो मुझे फ़ौरन कॉल करना। फ़िलहाल कुछ भी लेने के लिए घर से बाहर ना निकलो तो बेहतर होगा। मेरे पास मुलाजिम नहीं है जो मुझे बाहर से कुछ ला कर देगा। यूविल भी बिजी है। वो 27 साल एक्ट्रेस कहीं से नहीं लग रही थी। इसे लगा गोया वो किसी 5 साल बिगड़ी लड़की से मुखातिब हो। इसे खुद पर लम्हे भर को तरस सा आया था। तुम मुझसे रब्ता कर सकती हो। लेकिन वो ठहरा था। बिला वजह परेशान नहीं करोगे तुम मुझे। इसे तनबीहा करके वो चला गया। सेलिना ने मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद किया। इसे नहीं पता था कि वो क्यों मुस्कुरा रही है। इसका इसे बिला वजह परेशान करने का खैर से बहुत ज़्यादा इरादा था। वो नीचे उतरा तो इसका फ़ोन बजने लगा। इसने रिसीव करके कान से लगाया। गार्ड जी, थैंक यू, बहुत अच्छे हो तुम, और तुम्हारी आंखें तो बहुत ही प्यारी हैं, सेलिना। और इसकी आवाज़ सुनकर इसने एक झटके से राब्ता मुनक़ता कर दिया था। इसने बेयकीनी से फ़ोन को देखा था। क्या इससे गलती हो गई थी? इतनी बेबाक तो जूलिया भी नहीं थी जो इसे कहती कि इसकी आंखें प्यारी हैं। उफ़, इसने झुरझुरी सी ली थी। कहाँ फंस गया था वो? अपने अपार्टमेंट की ग्लास वॉल से इसे जाता देखती सेलिना को यकदम ही बहुत मज़ा आया था। अपने मोबाइल में महफूज यासिर का नंबर देखकर इसे खुशगवार सी लहर ने घेर लिया था।
اسے اپنے اوپر ہوا حملہ جیسے پھولنے لگا تھا۔ اسے بس اب اس کارڈ کی سرمئی سی پیاری آنکھیں ہر جگہ محسوس ہونے لگی تھی، اور پھر وہ اپنی ہی جگہ ٹھہر سا گیا۔ راہداری کے پار لائٹ جل رہی تھی، وہ اس لائٹ کو بجھائے رکھتا تھا۔ اس نے آہستگی سے قدم آگے بڑھائے، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا وہ اپنی جگہ ہی رک گیا۔ اس کے اوپن کچن میں کوئی کھڑا اپنے لیے تازہ چائے دم پر رکھ رہا تھا۔ یاسر عالم نے ذہنی طور پر آنکھیں ضبط سے بند کی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچن میں موجود نفس اس کی جانب پلٹا۔ وہ دراز قد، لگ بھگ یاسر کی عمر کا ہی تھا، بالوں کو ماتھے پر بکھیرے مسکراتی آنکھیں لگے وہ وجیہہ دکھتا تھا۔ ایک کیس اپنے اختتام کو پہنچا تو میں نے سوچا کہ اپنا بریک اپنے ایک قدر دوست کے ساتھ گزار لوں، لیکن دوست تو مجھے دیکھ کر ذرا بھی خوش نظر نہیں آ رہا۔ وہ اب کپ میں چائے انڈیلتا بغیر کسی خفگی کے کہہ رہا تھا، ارمان یہ آخری دفعہ ہے، چائے کے بعد تم اپنے گھر جا رہے ہو؟ ہرگز بھی نہیں، مجھے پسند نہیں کوئی میرے ساتھ رہے۔ تمہاری پسند ناپسند پوچھی ہے کسی نے؟ ویسے تمہارا ہی گھر ہے، اندر آ سکتے ہو۔ وہ مزے سے کہتا اپنی چائے لیے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ یاسر جو اب تک دروازے میں ہی استادہ تھا اندر پڑ آیا، پھر اپنا کوٹ اتار کر صوفے کے ہتھے پر ڈالا، آستینے کونیوں تک موڑ کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ اس کا اپارٹمنٹ صاف ستھرا سا تھا۔ کیا ہوا، پریشان ہو؟ وہ اگلے ہی پل پھانپ کیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن وہ ارمان کی زیرک آنکھوں سے بچ نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک ڈیٹیکٹو تھا، پچھلے ہی دنوں اس کی ٹیم نے ایک انتہائی پیچیدہ کیس حل کیا تھا، اسی لیے وہ چند دن کے بریک پر یاسر کے پاس رہنے چلا آیا تھا۔ جاب کیسی جا رہی ہے؟ جاب سے ریزائن کر چکا ہوں میں۔ کیوں؟ جولیٹ اب ٹائم دے رہی تھی کیا؟ اس نے محض سر ہلایا تھا۔ وہ سمجھ کر اپنی چائے سے گھونٹ پڑنے لگا۔ پھر کیا کر رہے ہو آج کل؟ ایک کیس سالو کر رہا ہوں، چیف حنیفہ نے اسائن کیا ہے۔ انٹرسٹنگ، کیسا کیس ہے؟ کوئی ایجنسی کی کمزور ایکٹریس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، غالب وہ مان گئی ہے کہ کوئی اندر سے باہر مخبری کر رہا ہے۔ حال میں کون اپوائنٹ ہو کر آیا ہے؟ ارمان سنجیدہ ہو گیا تھا، یاسر بھی سیدھا ہو بیٹھا۔ بہت سے گارڈز آئے ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ چیک کرو، لیڈ مل جائے گی۔ کوئی اندر ہی موجود ہے، مجھے یقین ہے۔ اس نے کہہ کر ارمان کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں سکڑیں۔ کیسے؟ تحقیقات کے دوران کبھی بھی اپنے شکوک و شبہات پر یقین نہیں کیا کرتے۔ یہ شک نہیں ہے، ایک رات قبل میں نے جب ایجنسی کے فلور پر کسی کو بھاگتے ہوئے پکڑا تب وہاں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود تھا۔ کل رات جب میں فلور پر تحقیقاتی روم میں موجود تھا تب اندھیرے سے کوئی مجھے گھور رہا تھا۔ اسے داخلی اور خارجی دروازوں کا علم ہے، اسے ایجنسی کے ہر حصے کا علم ہے۔ اس کی بات سن کر ارمان خاموش ہو گیا تھا۔ لمحے بھر کو اپارٹمنٹ میں خاموشی چھا گئی۔ کون سی بات تنگ کر رہی ہے؟ بول بھی دو اب۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھر کر یاسر سے پوچھا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک وقت میں 2 ایکٹریس کو سیکیورٹی الرٹ جاری کیے گئے ہیں۔ ایک ایکٹریس بہت مشہور اور بار سوخ ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں، جبکہ دوسری ایکٹریس پینی لیس ہے، وہی اصل ٹارگٹ ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 ایکٹریس کو کیوں نشانے پر رکھا جا رہا ہے، وہ بھی ایسی ایکٹریس کو جو ایک دوسرے سے اسٹیٹس میں کہیں زیادہ مختلف ہے۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اسے شیشے کے گلاس میں انڈیلتا کہتا جا رہا تھا۔ اسے کوئی بات بہت بری طرح چبھ رہی تھی۔ مس ڈائریکشنز۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا تھا، اس کا ہاتھ ٹھہر گیا تھا۔ ارمان نے کہہ کر مزے سے کندھے اچکائے تھے۔ وہ تمہیں مس ڈائریکٹ کر رہے ہیں برو، اصل ٹارگٹ کمزور ایکٹریس ہی ہے۔ کیسز میں آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے، جب کوئی کیس بھاری نوعیت کا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بہت سے ایسے کیسز کا منہ بھی کھول دیا جاتا ہے جو کئی دنوں سے بند پڑے ہوتے ہیں۔ یہ مس ڈائریکشنز ہوتی ہیں، ایسے چھنٹے جو آپ کو سیدھے راستے سے پٹکا کر گہرے جنگل کی جانب لے جائیں۔ اور یاسر عالم کو سمجھ آ گیا تھا کہ اسے کیا بات چبھ رہی تھی۔ اسے جولیا کا کیس میں موجود ہونا چبھ رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح کمزور نہیں تھی، اسے بس سیلینا کی جانب سے مس ڈائریکٹ کرنے کے لیے جولیا کا سہارا لیا گیا تھا۔ کیا پلان کر رہے ہو؟ اسے خاموشی سے پانی پیتا دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھیں۔ کچھ نہیں، فی الحال تو میں نے بنیادی معلومات ہی اکٹھی نہیں کی ہے۔ کیس سالو کرنے کے لیے مجھے سبجیکٹ کے کانٹیکٹس کا علم ہونا چاہیے۔ ہے کون جسے الرٹ جاری کیا گیا ہے؟ سیلینا۔ اور اس کے جواب پر ارمان چونک سا گیا تھا، پھر دلچسپی سے سیدھا ہو بیٹھا۔ سیلینا مظہر؟ یاسر نے محض سر ہلایا تھا، پھر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ پل بعد وہ آرام دہ لباس میں ملبوس فریش سا باہر نکل آیا تھا۔ گیلے بال ماتھے پر بکھرے تھے اور اس کے ہاتھ میں چند فائلز تھیں۔ سیلینا مظہر؟ پچھلے سال سے کرائسس میں ہے وہ تو جانتا ہوں، تمہیں یہ کیس پولیس کو دے دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اسے سالو نہیں کر سکتے، لیکن جتنے لوگ سیلینا کے ساتھ انوالوڈ ہیں وہ سب خاصے بار سوخ ہیں، ان سے دو ہاتھ کرنے کے نتائج اچھے ثابت نہیں ہوتے۔ وہ متانت سے کہہ رہا تھا، پتہ ہے، لیکن یہ ایجنسی کی ساکھ سے زیادہ ایک پرسنل فیور نما کیس ہے۔ اس انسان کے بہت سے احسانات ہیں مجھ پر، اسی لیے انکار نہیں کر سکتا۔
पुलिस को केस देना मुश्किल नहीं है, लेकिन सेलिना की ऑलरेडी ख़राब साख के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। और सेलिना के लिए पर्सनल फेवर मांगा किसने है? इसे यकदम ही सारा केस बेहद दिलचस्प मालूम होने लगा था। यासिर के वर्क गिरदानी करते हाथ लम्हे पर को ठहर से गए थे। चीफ हनीफा का फिक्रमंद सा चेहरा इसकी नज़रों के सामने लम्हे पर को लहराया था। इसके बाप ने और एक लम्हे के लिए अरमान साकित हो गया था। यासिर का खामोश जवाब इसके दिमाग पर जोर से आ लगा था। जहाँ तक मैं जानता हूँ, सेलिना मसर का बाप मर चुका है और वो अपनी सिंगल मदर के साथ रहती है। जो मरा है वो इसका सौतेला बाप था। इसका सगा बाप जिंदा है। इसके हाथ पैर से वर्क गिरदानी कर रहे थे। अरमान को समझ नहीं आया कि इसकी मालूमात पर इसे कैसे दाद दे। इम्प्रेसिव। अब ये बताओ कि तुम इस केस का हिस्सा बनने पर राज़ी क्यों हुए हो? वो वाकतन इंस्पेक्शन टीम का काबिल ऑफिसर था। इसके सवालात आम इंसानी सवालात से खासे मुख्तलिफ थे। एहसान का बदला एहसान के सिवा और क्या है? और इसका जवाब सुनकर वो चुप सा हो गया था। इसके बाप को पता है कि तुम्हें पता है कि वो इसका बाप है? इसके सवाल पर वो पहली दफ़ा मुस्कुराया था। तुम्हारी कमीनी मुस्कुराहट बता रही है कि तुमने अपने मुंह से फाप भी निकालने को हराम कर रखा है। बेचारे चीफ, मुझे लोगों की गलत फहमियों को दूर करने का शौक़ हरगिज़ नहीं है। इनके पास वजूहात हों कि मुझे ना बताने की। अगर ऐसा है तो मैं भी आखिर तक इन्हें यकीन दिलाने के लिए तैयार हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। तुम आखिर बॉडीगार्ड क्यों हो? तुम्हें तो डिटेक्टिव होना चाहिए था। और याद है हमने एक साथ टेस्ट क्लियर किया था डिटेक्टिव के डेजिग्नेशन के लिए। फिर तुम बॉडीगार्ड बनने चले गए अपने दोस्त को तनहा करके। कभी माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें इसके लिए। गुड, कभी माफ़ मत करना मुझे, लेकिन कल तुम मुझे यहाँ नज़र ना आओ। मुझे नफ़रत है अगर कोई मेरे साथ आकर रहे। कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपनी बीवी समझ सकते हो, और क्या तुम यहाँ से दफ़ा हो सकते हो? ठहर कर पूछा और फिर अपनी फाइल्स लिए सोफ़े पर पीछे हो बैठा। अरमान इसके जवाब पर हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ था। वैसे सेलिना मज़र मेरी फ़ेवरेट है। मेरे अलावा वो सबकी फ़ेवरेट है। मुझे ज़रा भी हैरत नहीं हुई। इसकी हाँ के जवाब में इसने सुकून से कहा था। पत्थर का दिल होना चाहिए सेलिना को नापसंद करने के लिए। मैं तो हैरान हूँ कि इसके साथ काम करते हुए तुम अपने हवास कैसे बरकरार रखते हो। क्या तुम्हें इसकी खूबसूरती डिस्ट्रैक्ट नहीं करती? मुझे सिर्फ इसकी बेवकूफ़ी डिस्ट्रैक्ट करती है। और इसके जवाब पर कमरे से एक और कहका उभरा था। आंखों पर नज़र का चश्मा लगाए वह अब मसरूफ सा हर एक वर्क उलटता जा रहा था। इसकी आंख फ़ोन की बजती घंटी से खुली थी। कमरे में मौजूद खिड़की से रोशनी छन कर इसके वर्क टेबल पर गिर रही थी। वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया था। सामने कागजात का अंबार लगा था और इसका मोबाइल भी कई फाइल्स के नीचे ही दबा हुआ था। इसने मंदी आंखों से हाथ मारकर मोबाइल बरामद किया और फिर बगैर देखे राब्ता जोड़कर फ़ोन कान से लगा लिया। यासिर आलम, राइट। क्या तुम मुझे डिलाइट चॉकलेट का एक बड़ा पैक लाकर दे सकते हो? देखो मेरी गाड़ी ख़राब है और पैदल घर से निकलना मेरे लिए मुनासिब नहीं, और ये इंतहाई एमरजेंसी कॉल है, इसे मजाक मत समझना। इसने फ़ोन कान से हटाकर नासमझी से देखा। व्हाट द हेल, मैंने भी आपको वार्न किया था कि सिर्फ एमरजेंसी में कॉल करेंगी आप मुझे। चॉकलेट्स, इसे जैसे यकीन नहीं आया था। अगर घर से अकेली निकलूंगी तो तकलीफ़ भी सबसे ज़्यादा तुम्हें ही होगी। जिता कर कहा। यासिर का दिल किया अपने बाल नोच ले। कौन सा मनहूस लम्हा था जब इसने इस केस के लिए हामी भरी थी। मैं हरगिज़ भी तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। गार्ड्स भी एक तरह के नौकर ही होते हैं। सुबह ही सुबह वो दादा की तरह क्यों लड़ी थी आखिर? क्या एक दादा कम नहीं थे? सेलिना, आई एम सीरियस, आई एम डैम सीरियस गार्ड जी। इसे लगा वो दूसरी जानिब मुस्कुराई है। इसने फ़ोन कान से हटाया और राब्ता मुनक़ता कर दिया। अगले कई लम्हात में वो चॉकलेट का एक बड़ा पैकेट लिए इसके अपार्टमेंट की जानिब बढ़ रहा था। दरवाज़ा खटखटाने से कबल ही खुल चुका था। इसने हवा में मौलिक अपना हाथ नीचे कर लिया। तुम तो वाकई बहुत अच्छे हो। ये आखिरी दफ़ा था। इसने ठहर ठहर कर तनबीह की थी। सेलिना ने तो जैसे सुना ही नहीं था। इसके हाथ से पैकेट उचका तो वह गहरा सांस भर के रह गया। ये लो तुम्हारे पैसे। साथ ही हाथ बढ़ाकर इसे 1000 का नोट थमाया, लेकिन वह पैसों की जाने मतवज्जो नहीं था। वह सख्त खराब मूड के साथ बगैर कुछ कहे चला गया था। वो मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद कर रही थी। अगले दिन एजेंसी में जब वो प्रिंटर के पास खड़ा अपनी ज़रूरी दस्तावेज़ात प्रिंट कर रहा था तो इसका फ़ोन बजा। इसने कान से लगाकर मसरूफ़ सा हेलो कहा था। गार्ड जी, मेरा सिंगर खाने को बहुत दिल चाह रहा है। क्या तुम मुझे ला कर दे सकते हो? एक ठंडी ठार कोक के साथ। इसके हाथ से कागजात गिरते गिरते बचे थे। इसने कागजात टेबल पर लाकर शिरप से रखे तो ज़ार और शेर इसे चेहरा उठाकर देखने लगे। साहिर ने भी इस पर एक निगाह डाली थी। इनके सुप्रीम हैंडसम पार्ट का मूड सख्त ख़राब था। मज़ीद कुछ नहीं हुआ। वह अगले कई लम्हात में KFC से बाहर निकल रहा था। इसके हाथ में बर्गर का डिब्बा और साथ कोक भी मौजूद थी। दरवाज़ा बजने से पहले ही खोल दिया गया था, यूँ जैसे वह इसी का इंतज़ार कर रही हो।
اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے دونوں چیزیں تھمائیں۔ تم اندر آ سکتے ہو، میں کاٹتی نہیں ہوں۔ لیکن وہ کچھ بھی کہے بغیر پلٹ گیا تھا۔ سیلینا کی شرارتیں تھمنے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل رہا ہوتا یا نچلے فلور پر بہت سے سینئر گارڈز کے سامنے پریزنٹیشن دے رہا ہوتا۔ وہ اس سے کسی بھی وقت کبھی بھی کچھ نہ کچھ فرمائش کر رہی ہوتی تھی۔ اب تو ہوٹل مالکان بھی اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ اتنا سنجیدہ گارڈ ہاتھوں میں رنگ برنگی چیزیں لیے آتا جاتا انہیں بہت بھلا معلوم ہوتا تھا۔ ایک رات سیلینا نے اسے فون کیا تو اس نے اول تو فون ہی نہیں اٹھایا، لیکن اس کے مستقل کالز پر اسے فون اٹھانا ہی پڑا۔ وہ دوسری جانب کراہ رہی تھی۔ اس کے معدے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے پھر سے بھاگنا پڑا۔ ہاسپٹل لے کر گیا تو ڈاکٹرز کے انکشاف پر سیلینا مظہر کو اپنا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ انہیں کھانا ٹھیک سے نہ کھانے کی وجہ سے قبض ہو رہی ہے اور اس کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کے ایٹنگ ڈس آرڈر کی وجہ سے اکثر معدے میں شدید تکلیف کا سامنا رہا کرتا تھا۔ اب کی بار اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی گارڈ کو بلانے کی؟ یاسر البتہ بنا کسی تاثر کے ڈاکٹر کا سن رہا تھا۔ وہ چیک اپ بیڈ پر دراز تکیے میں اپنا منہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ قبض بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایسی دوائی کا استعمال کیا جو ہاضمے میں مدد دے۔ اب انہیں لوز موشن ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کھانا بہت کم کھا رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے ٹھہر کر پوچھا تو اس نے یاسر کو دیکھنے سے حتی المکان پرہیز کیا۔ البتہ اس کا چہرہ حد تک سے شدید سرخ ہو رہا تھا۔ جی میں ڈائٹ پر ہوں۔ اور یاسر نے لمحے بھر کو اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ زنگر اور چاکلیٹس کے ساتھ کون سی ڈائٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں ایکسٹریم ڈائٹ کی وجہ سے ان کا میٹابولزم انتہائی سلو ہو چکا ہے۔ اس کے لیے انہیں بیلنس ڈائٹ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ شوہر ہیں نا ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ اور زمین کو اب واقعتاً پھٹ جانا چاہیے تھا تاکہ وہ ڈھنگ سے اس میں سما سکتی۔ یاسر کا چہرہ البتہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے جیسے اپنے ساتھ ہوتے واقعات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے ہسپتال سے لیے باہر چلا آیا۔ وہ رف جینز اور سویٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ یاسر نے سفید شرٹ پر پوری جیکٹ زیبتن کر رکھی تھی۔ وہ اس سے بہت آگے تیزی سے چل رہی تھی۔ اب کیسے سامنا کر سکتی تھی بھلا وہ اس کا؟ قبض، لوز موشن، یا اللہ! تو تم وہ سب کچھ کھا نہیں رہی تھی، بس مجھے تنگ کر رہی تھی۔ اس نے اپارٹمنٹ کے باہر ٹھہر کر گویا ساری باتوں کا لبے لباب اخذ کیا تھا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ یاسر کو اب اس پر غصہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اندر جاؤ، کچھ لمحے بعد نرمی سے کہا۔ تم ڈانٹو گی نہیں مجھے؟ اس کے کچھ نہ کہنے پر اس نے پہلی دفعہ سر اٹھایا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں بہت سی حیرت تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ میرے پاس تمہیں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سوری، اس نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا تھا۔ وہ سر ہلانے لگا۔ اندر جاؤ، دروازہ بلا وجہ مت کھولنا کسی کے لیے۔ وہ پلٹ گیا۔ سیلینا بھی اندر کی جانب بڑھ آئی تھی۔ کچن کاؤنٹر پر وہ ساری چیزیں بڑے اہتمام سے رکھی تھی جو اس نے یاسر سے منگوائی تھی۔ اس نے ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اسے بس اپنی ایک پکار پر کسی کے دوڑے چلے آنے کے احساس نے ان دنوں مسحور کیے رکھا تھا۔ کوئی اس کے لیے بھی آ سکتا تھا۔ ایک پکار پر عرصہ ہوا اس کی ایک پکار پر دوڑے چلے آنے والے لوگ تھم گئے تھے۔ شہد رنگ آنکھوں میں جانے کی وہ گلابی سی نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ خاموش چہرہ لیے اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ آئی تھی۔ اس کا دل ساری دنیا سے خفا ہو گیا تھا۔ حسن ہاؤس دھوپ کی تمازت تلے جھلس رہا تھا۔ اس کے اونچے خوبصورت ستون اور قیمتی پتھروں جڑا داخلی دروازہ اس کی شان و شوکت کا علم بردار تھا۔ واجد حسن سربراہی کرسی پر براجمان خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ ہال میں محض کانٹے اور چمچ کی آواز گونج رہی تھی۔ ایک جانب آئی پیڈ کھلا رکھا تھا اور وہ ساتھ ساتھ ای میلز نیچے کرتا ایک نگاہ ڈال رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی ماریا نے اس پر ایک نظر ڈالی تھی۔ ان کی آخری تلق کلامی کے بعد سے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے تھے۔ کیا ہم ایک دوسرے کو کسی تیسرے فرد کی وجہ سے اگنور کرتے رہیں گے؟ اس نے کانٹے سے انڈے کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ واجد کا ہاتھ لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا تھا۔ پھر اس نے نظریں اس کی جانب پھیری۔ تیسرے فرد کو تم لائی تھی درمیان میں۔ تم اتنے پارسا نہیں ہو واجد۔ وہ تلق ہوئی تھی۔ اس نے کانٹا زور سے پلیٹ میں رکھا تو کچن میں کھڑے نوکر سہم سے گئے۔ میں نے کبھی بھی بددیانتی نہیں کی ہے اس رشتے میں۔ کبھی بھی اسے پلٹ کر نہیں دیکھا میں نے کہا نا تم اتنے پارسا نہیں ہو۔ تم آج بھی اسے یاد کرتے ہو۔ ماریا کو اپنی آنکھیں دہکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ واجد نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ بہت ہو گیا ماریا، میں اسے بھولنا بھی چاہوں تو نہیں بھول سکتا کیونکہ تم مجھے بھولنے ہی نہیں دیتی ہو۔ ایسا کیا ہے اس 2% کی ایکٹریس میں جو تم اسے آج تک اپنے دل سے نکال نہیں سکے ہو؟ نہ عقل ہے، نہ شکل ہے، نہ اسٹیٹس ہے، نہ اخلاقیات ہیں، نہ اثر و سلوک ہیں۔ ہے کیا آخر اس کے پاس؟ وہ ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ واجد نے لمحے پر کو اسے افسوس سے دیکھا تھا۔ یہ عورت اپنا گھر خود برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کے پاس معصومیت ہے، بہت شفاف دل ہے، منافقت سے خالی، محبت سے بھرا دل ہے، بغیر کسی تفریق کے محبت دینے پر راضی دل ہے اس کے پاس، اور یہ تمہارے پاس نہیں ہے ماریا۔
اس نے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ علیحدگی سے کہا تھا تاکہ وہ اسے پوری طرح سن لے، اور ماریہ حسن نے اسے سن لیا تھا۔ اسے اپنی کن پٹیاں جلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت خوفناک تاثرات اوپر آئے تھے۔ تم چاہو بھی تو ویسی نہیں بن سکتی۔ دنیا کی کوئی بھی لڑکی چاہے تو میرے لیے سیلینا مظہر نہیں بن سکتی۔ میں چاہوں بھی تو اس کی وہ معصوم عادتیں نہیں بھلا سکتا۔ اس دنیا کی ہر شے مجھے اس کا بے داغ وجود یاد دلاتی ہے۔ کیا کچھ اور بھی سننا ہے تمہیں؟ اس نے تیزی سے کرسی گھسیٹی اور ہال سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ماریہ کو جیسے اس کے حد تک امیز جملوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ واجد حسن نے کئی سالوں سے اس جواب کو دینے سے خود کو باز رکھا تھا، لیکن اب اس کا صبر اپنی حد کو پہنچ چکا تھا۔ گھر میں ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی، یوں گویا کبھی اس گھر میں کسی نفس نے کلام کو زحمت دی ہی نہ ہو۔ اگلے دن اس کی کار ٹھیک ہو کر واپس آ چکی تھی، اسی لیے وہ آج ایجنسی چلی آئی تھی۔ یوول نے اسے کہا تھا کہ وہ آج ڈائریکٹر سے بات کرے گا۔ ساتھ ہی نظر نے اس کے کم بیک کے لیے ایک فوٹو شوٹ ترتیب دے دیا تھا۔ کچھ نہ کچھ کام اسے ملتا تو بہتر تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کا لباس زیبتن کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی جالی دار آستینیں ہتھیلیوں تک آتی تھی۔ سیدھے بالوں کو ایک جانب کندھے پر ڈالے وہ بہت اعتماد سے آگے بڑھ رہی تھی۔ گردن پر نشان البتہ ضرور موجود تھا۔ ڈریس کا گلا چوکاٹ تھا، اسی لیے اسے گردن میں گلابی رنگ کا ڈریس سے میچ کرتا مفلر لینا پڑا۔ اس کے فیشن میں کسی کو کیا احساس ہونا تھا بھلا؟ آفس کی جانب ہٹتے ہوئے اسے یوول دور سے ہی نظر آ گیا تھا۔ وہ شاید فون پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ سیلینا نے اسے ہاتھ ہلایا اور پھر پاس چلی آئی۔ وہ اس کے ڈائریکٹر سے ہی بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آسو امید کے ڈورے جڑنے لگے۔ جی بہتر، آپ جگہ بتا دیں۔ سیلینا خود آپ سے اسکرپٹ آ کر، لیکن اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، کسی نے اس کے ہاتھ سے فون اچک لیا تھا۔ ان دونوں نے اس جانب دیکھا تو چونک گئے۔ یاسر اب فون کان سے لگائے بغیر کسی دقت کے ڈائریکٹر سے بات کر رہا تھا۔ نہیں، سیلینا نہیں آ سکتی۔ آپ کو ریگولیشنز کے تحت اسکرپٹ یہاں آ کر خود دینی چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو بہتر یہی ہوگا کہ اپنی آفر پر دوبارہ غور کر لیا جائے۔ اگر ایجنسی میں آپ کے روٹ رویے کے بارے میں افواہیں پھیل گئیں تو کوئی ایکٹریس آپ کے ساتھ کام کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔ کیا یہ بات آپ کو منظور ہے؟ سیلینا اور یوول اس سے موبائل چھین کر ڈائریکٹر سے معذرت کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سے موبائل لیتا کون؟ وہ آنکھوں میں تنبیہہ لیے ان دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ افواہ کون پھیلائے گا؟ انڈسٹری میں افواہیں پھیلانا کوئی مشکل کام نہیں، اور میں سیلینا کا باڈی گارڈ بات کر رہا ہوں۔ کچھ سیکیورٹی ایشوز کے باعث وہ نہیں آ سکتی۔ کچھ لمحات بات کرنے کے بعد اس نے فون کان سے ہٹا کر یوول کی جانب بڑھایا تو سیلینا کا دل کیا اپنا پرس اس کے سر پر دے مارے۔ یہ کیا تھا؟ کچھ نہیں، کل وہ اسی وقت تمہیں اسکرپٹ دینے آئے گا، وقت پر پہنچ جانا۔ وہ اگلے ہی پل انہیں ہونک بنا چھوڑ کر پلٹ گیا تھا۔ سیلینا اس کے پیچھے ہیلز کے ساتھ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ کہ تم نے کیسے کیا؟ میں 7 سال سے باڈی گارڈ ہوں، چوک نہیں مارا ہے میں نے۔ اور بھاگو مت، اگر اب ہیلز ٹوٹی تو ننگے پیر کھڑ جاؤ گی۔ لیکن وہ نہیں سن رہی تھی، وہ اس کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا تم میرے باڈی گارڈ بنو گے؟ میں تمہیں بہت اچھا پے کروں گی۔ وہ اس کے ساتھ ہی لفٹ میں چڑھ رہی تھی۔ پارکنگ ایریا تک وہ اس سے اپنا باڈی گارڈ بننے کے لیے بحث کرتی رہی تھی۔ ہرگز بھی نہیں۔ کیوں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اس نے ٹھہر کر اسے دیکھا تھا، بس ایک پل کے لیے۔ بالکل بھی نہیں۔ سیلینا نے ضبط سے سانس لیا تھا۔ یہ بدتمیز کارڈ۔ وہ اس کے پیچھے تیزی سے پڑی اور ابھی اس کا پیر الجھا ہی تھا اور عین ممکن تھا کہ وہ گر پڑتی، لیکن یاسر نے بغیر کسی دقت کے ایک ہاتھ سے اسے تھام لیا تھا، پھر اسی پاس سے پکڑ کر اسے سیدھا کھڑا کیا۔ کوئی کام ٹھیک سے کیوں نہیں کرتی تم؟ اس نے بیزار ہو کر کہا، لیکن سیلینا اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ وہ ایک جگہ ہی ساکت ہو گئی تھی۔ اس کے عین سامنے واجد حسن کھڑا تھا، وجیہہ اور ٹھہرا ہوا واجد۔ لمحے پر کو یاسر نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ واجد کو دیکھ کر اس کی آنکھیں سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پلٹ کر ان دونوں کے درمیان سے نکل گیا۔ اس کا رخ اپنی کار کی جانب تھا۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو سیلین؟ واجد کے پہلے جملے پر سیلینا کو لگا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی۔ کچھ آج بھی ٹوٹ کر جڑ رہا تھا، جڑ کر ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ٹپٹپا سی گئی تھی۔ اس شخص سے کبھی اس نے بہت محبت کی تھی، لیکن خوبصورت آج بھی بہت ہو تم۔ وہ قریب چلا آیا اور قریب تھا کہ اس کے رخسار کو چھو لیتا، لیکن کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ سیلینا نے چونک کر درمیان میں آئے ہاتھ کو دیکھا تھا، پھر اس کی آنکھیں اس شخص کے وجود پر پھسلتی گئیں۔ وہ گارڈ تھا۔ سرمئی آنکھوں میں ٹھہرو ناگواری لیے سامنے والے کا ہاتھ درمیان میں ہی روکے۔ کیپ یور ڈسٹینس۔ واجد حسن کو جیسے اس کے جملے پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے ناپسندیدگی سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ تم کون ہو اور ایسے ہاتھ روکنے کی بد تہذیبی کی قیمت جانتے ہو نا؟ اس نے انتہائی ناگواری سے کہا تھا۔ یاسر کا چہرہ بے تاثر ہی رہا۔ فضول سوالات اسے ویسے بھی بے حد زہر لگتے تھے۔ کیا تم اسے جانتی ہو سیلین؟ اس نے اس کی جانب دیکھ کر نرمی سے پوچھا اور ایک بار پھر آگے بڑھنا چاہا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔
यासिर का हाथ दरमियान में मौजूद था। इसने माथे पर बहुत से पल लिए वाजिद को देखा था। फासला रख कर बात करें। और अब कि इसकी आवाज़ में वाज़ेह वार्निंग लहरा रही थी। सेलिना बहुत सी नमी लिए बिल्कुल खामोशी से बस इस कार्ड को देख रही थी, जो इसकी ज़िंदगी में आए बाकी मर्दों की मानंद बुज़दिल नहीं था, जिसे मालूम था कि जुर्रत और गैरत किन एहसासात का नाम था, जो हाथ तोड़ना और रोकना दोनों जानता था। अपनी बकवास बंद रखो और दरमियान से हटो। हमारे दरमियान मौजूद कई माह साल हैं। तुम्हारी ये लेम हरकतें इन सालों को इनकार नहीं कर सकती। वाजिद की पंकार पर वो पहली दफ़ा मुस्कुराया था। एक पल को इसे महसूस निगाहों से देखा, फिर चेहरा सेलिना की जानिब फेरा, जो इसे ही देख रही थी। क्या आप इन्हें खुद को हाथ लगाने देना चाहती हैं सेलिना? इसने पूछा तो वाजिद जहर खंदा सा मुस्कुराया, लेकिन इसकी मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हो गई थी, क्योंकि सेलिना इस कार्ड को देखकर सर नफ़ी में हिला रही थी। इसकी आंखों में मौजूद इल्तिजा यासिर तक पहुंच गई थी। इस आदमी को मुझसे दूर ले जाओ यासिर, मुझे इससे बचा लो। और फिर इसने समझकर सर हिलाते हुए वाजिद की जानिब देखा था। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई लड़की कहे कि इससे दूर हो जाओ, तो इखलाक का दायरा कार यही कहता है कि इससे दूर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर ऐसे लोग बात ना माने, तो गैरत का दायरा कार कहता है कि मार मार कर इनकी शक्ल बिगाड़ देनी चाहिए। और ऐसे कहता हुआ वो सेलिना मज़र के दिल का हर दरवाज़ा तोड़ता अंदर जा बैठा था। क्या कोई इस लड़के को बताएगा कि वो दाएं जानिब से कितना हैंडसम लगता है? कोई इसे बता दे। वो इसके लिए वाजिद से बहस कर रहा था और वो बस महफ होकर इसे देख रही थी। पार्किंग एरिया के इस हिस्से में अब हर जानिब मोहब्बत की परियां उतर आई थी और वो इन सुनहरी परियों के हसार में भीगती जा रही थी। आज एक मोहब्बत का स्याह निशान दिल से धुल गया था और दूसरी मोहब्बत का सुनहरा निशान सख्त हो गया था। इसकी भीगी आंखें खामोशी से यासिर को तक रही थी। अगले ही पल इसने वाजिद की जानिब देखा। वो माथे पर नागवार लकीरें लिए सख्त नापसंदीदा निगाहों से गार्ड को देख रहा था। अगर आपको फासला रखकर बात करनी नहीं आती तो बेहतर यही है कि आप बात मत करें, वो कह रहा था। वाजिद ने करख्त अंदाज से इसका हाथ दोबारा झटका था, लेकिन यासिर बिना किसी असर के खड़ा रहा। शायद इसकी ट्रेनिंग ने इसे ऐसे मामलात को पर्सनल ना लेना सिखा दिया था। यही बात मैं सेलिना से सुनना चाहता हूँ। क्या वो भी ऐसा ही चाहती है या तुम इसके मुंह में अपने लफ्ज़ दे रहे हो? यासिर ने पलटकर इसकी जानिब देखा। वो इसे इस लम्हे बहुत दर्द महसूस हुई थी, लेकिन इसकी आंखें मुर्दा थीं। वो आंखों में बेहद अजीब सा तासुर लिए वाजिद को देख रही थी। बॉडीगार्ड्स इसीलिए रखे जाते हैं ताकि वो अपने सब्जेक्ट के लिए वो फैसला ले सकें जो इनकी हिफाजत में मुआविन साबित हो। बाज़ दफ़ा हम खुद अपने लिए फ़ैसले नहीं ले सकते, इसीलिए हम अपने गार्ड्स के फैसलों पर भरोसा करते हैं। आपसे किसी किस्म का ख़तरा महसूस करके ही वो दरमियान में आया है और मैं इसके दरमियान में आने पर बिल्कुल भी नाखुश नहीं हूँ, इसने मुर्दा आंखें लिए स्पॉट लहजे में कहा था। वाजिद तो चौंका सा चौंका, लेकिन एक लम्हे के लिए यासिर ने भी इसके जवाब पर इसे हैरत से देखा था। इसने सेलिना को कभी ऐसे अंदाज में बात करते हुए नहीं सुना था। एक गार्ड के फैसले पर तुम भरोसा कर रही हो? वो बेयकीनी से हंसा था। तुम तो आज भी इतनी ही मासूम और बेवकूफ़ हो सेलिना। इसने कतियत से इसकी तस्दीक की थी। वाजिद हसन का चेहरा ताज्जुब से सुर्ख हो गया था। सेलिना नाम है मेरा। मुझसे वाबस्ता लोगों के अलावा मुझे इस नाम से कोई भी नहीं पुकार सकता। आप भी नहीं वाजिद हसन साहब। और इसने अपने और इसके दरमियान एक लकीर खींच दी थी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा। मुझे पता है तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैंने की थी आपसे मोहब्बत, शायद आपने ही मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की थी। इसकी बात सुनकर वाजिद बेकरारी से यकदम आगे बढ़ा था, लेकिन फिर वो एक हद से आगे नहीं बढ़ सका। दरमियान में यासिर का हाथ मौजूद था। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी, अब भी करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करना चाहता हूँ सेलिना। मैं बहुत से डायरेक्टर्स और मुख्तलिफ प्रोड्यूसर से तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी कठिन ज़िंदगी को बस थोड़ी सी आसानी देना चाहता हूँ। मुझे अपनी मदद करने से मत रोको, मैं खुद को मुआफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। इसका लहजा मिन्नत लिए हुए था। सेलिना लम्हे भर को तलखी से मुस्कुराई थी। इसने यासिर के बाजू को लम्हे भर के लिए थामा। वो चौंका तक नहीं। इसे सेलिना के हाथ में मौजूद लर्जिश बखूबी महसूस हो रही थी। बदकिरदार, बेगैरत, बदजात, ये अल्फाज मुझे आपके पापा ने कहे थे। ये अल्फाज मेरी समाज से ज़ायल नहीं होते। मुझे इन लफ्ज़ों की पास गश्त पागल कर देती है वाजिद। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भीख में दी गई इमदाद तो हरगिज़ भी नहीं। आप मुझे रुस्वा होने से नहीं बचा सके। आप मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सके। आपकी मजबूरियाँ थी। मैं आपको इसके लिए कभी भी गुनहगार नहीं ठहराऊँगी। लेकिन इसकी आवाज़ लम्हे भर को लड़सी थी। यासिर के पासों पर इसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, इन्हें कभी रुस्वा नहीं होने देते। आप मुझे जलील होने से नहीं बचा सके। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मुझे बस आपकी मोहब्बत से गिला था।
गुलाबी पड़ती आंखें, दर्द करता हलक, अंदर गिरते आंसू, दिल पर लगते जख्म। अगर इसने यासिर को थाम नहीं रखा होता तो वो गिर जाती। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तुम बदकिरदार नहीं हो, कभी भी नहीं थी। ये बात आपको वहाँ 50 लोगों के दरमियान करनी चाहिए थी वाजिद। आप वहाँ गर्दन झुका कर खड़े रहे और मुझे जलील होने के लिए तन्हा कर गए। इन चुभती निगाहों के बाद मेरा दिल खाली हो गया है। खोखला कर दिया था मुझे आपके पारसा रिश्तों ने, लेकिन फिर भी इस खाली दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आंसू बाहर नहीं गिरे, इसका अंदर भीगता रहा। इसे सांस लेने में दुश्वारी सी हो रही थी। मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं एक कमतर एक्ट्रेस हूँ जिसकी माँ एक बार हॉस्टेस है। मेरे पास लंबे चौड़े असासाजात रखने वाले रिश्तेदार मौजूद नहीं है। मैं आपके लिए कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं थी। सेलिना प्लीज़। वाजिद हसन का लहजा इल्तिजाइया था। इसी लम्हे कोई कतार में लगी गाड़ियों से हिल के टिक टिक लिए इनके जाने पड़ा था। इसके कंधों तक आते बाल और पैंट कोट में मलबूस सिरापा दराज और पतला सा था। हाथ में कीमती परस लिए वो मारिया हसन थी, जो अगले ही लम्हे वाजिद हसन के ऐन साथ आ खड़ी हुई थी। लम्हे पर को जैसे हर सी नफ्स का सांस तक रुक गया था। वाजिद का चेहरा बेहद सफ़ेद महसूस हो रहा था। इसे मारिया को यहाँ देखने की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। तुम्हें किसी और के शौहर पर हाथ डालते हुए ज़रा शर्म नहीं आती? इसका जहरीला लहजा और हित्ता कमीज़ अंदाज सेलिना को इन दोनों के सामने अपना आप बेहद छोटा महसूस होने लगा था। वो ना चाहते हुए भी लरस रही थी। आपके शौहर से ये बात पूछी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं तो इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसने नफरत से कहा था। मारिया इस्तज़ाह सा मुस्कुराई। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है? हर लम्हा विक्टिम कार्ड खेलकर मर्दों की हमदर्दी हासिल करना। पता है क्या, तुम अलग तरह की बदकिरदार हो। वो जो हर मौका पर मजलूम होने का ढोंग रचाकर तवज्जो हासिल करने में माहिर होते हैं ना, बिल्कुल वैसी। मारिया, वाजिद ने इसे तनबीहा की थी, लेकिन वो इसे नहीं सुन रही थी। इसकी आग बरसाती आंखों का रुख फिलहाल सेलिना थी। तुम एक्ट्रेस क्यों हो? तुम्हें तो रेड लाइट एरिया की जीनत होना चाहिए था। खासी खूबसूरत हो, अच्छा कमा लेती। बिला वजह इज्जत के ढोंग रचाकर अपना पेट क्यों काट रही हो? साथ में मेरे शौहर और जाने मजीद कितने लोगों को वरगला भी रही हो। मुझे 1 मिनट लगेगा ये साबित करने में कि यहाँ कौन किसको वरगला रहा था। यासिर की बेतासुर सी आवाज़ उभरी थी। मारिया ने इस पर एक उचटती निगाह डाली। फिर वो 2 कदम चलकर सेलिना के करीब आई। इसकी आंखों में अपनी शोलाबार आंखें गाड़ी। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। इसकी सरगोशी यासिर और वाजिद ने बखूबी सुन ली थी। गो अहेड, सेलिना की बजाय इसने जवाब दिया था। इसने एक झटके से चेहरा मोड़कर यासिर की जानिब देखा था। वो बेहद संजीदा था, खौफनाक हद तक संजीदा। मैं इसके साथ काम करते हर फर्द की ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगी। वो अब खास तौर पर यासिर की जानिब देखती गुर्राई थी। आई सेड गो अहेड, माथे पर बल डालकर कहा। तुम देखोगे कि मैं क्या करती हूँ। वाजिद ने इसे हाथ से पकड़कर पीछे खींचा था। फॉर गॉड सेक मारिया, वो इस पर चिल्लाया था, लेकिन मारिया को यासिर का ठंडा सा काटदार अंदाज बुरी तरह चुभ सा गया था। मैं देखना पसंद करूँगा कि आप क्या करती हैं। वैसे अगर आप अपने शौहर का संभाल लें तो मज़ीद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्का सा मुस्कुराया। मारिया हसन को जैसे ज़ोरदार चांटा दे मारा था इसने। अपनी बकवास बंद रखो। तुम हो कौन? मैं वो हूँ जिसके पास इस एजेंसी का सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है। सीसीटीवी फुटेज, दरवाज़ों पर खड़े गार्ड्स, मेरी जेब में अटसा कैमरा पेन और पार्किंग एरिया के अंदर खड़ी तमाम गाड़ियों में मौजूद ब्लैक बॉक्सेस आपके शौहर की घटिया हरकत के गवाह हैं। और इससे पहले मुल्क के नामवर इंडस्ट्रियलिस्ट आपकी अस्तवाजी ज़िंदगी के उधड़े पक्के देख लें, बेहतर यही होगा कि आप अपना शौहर लें और यहाँ से चली जाएं। और हाँ, वो जो सेलिना को कलाई से थामे पलटने लगा था, लम्हे पर को रुका। मैंने सुना है कि रेड लाइट एरिया में कई शुरफा आते हैं। इनमें से एक का नाम शुएब बस्तामी है। क्या वो आपके वालिद नहीं? और अगर वो कहता था कि इसने 7 साल से झुक नहीं मारा तो ठीक ही कहता था। मारिया और वाजिद के चेहरों से लगता था गोया लहू का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया हो। इसने सेलिना को अपने साथ लिया और आगे बढ़ाया। फिर पार्किंग एरिया के कंट्रोल रूम का दरवाज़ा खोलकर इसे वहां ले आया। वो लंच आवर था, इसलिए वर्कर्स वहां मौजूद नहीं थे। इसने कहीं से कुर्सी लाकर रखी तो सेलिना लरसते कदम लिए बेदम सी बैठ गई। कुछ देर बाद वो बिल्कुल खामोशी से इसके सामने पानी का गिलास लिए खड़ा था। इसने गिलास लिया और कटाकट पानी हलक से उतारने लगी। इसे एहसास नहीं हुआ कि वो इतनी प्यासी है। वो चुपचाप इसके सामने खड़ा रहा। गिलास इसके हाथ में अब तक था। फिर यकायक ही कई आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। रुखसार खामोशी से भीगने लगे। वो खामोश चेहरा लिए इसे देख रहा था। वो हथेली की पुश्त से आंसू रगड़ती जा रही थी। नाक शिद्दत से दहक रही थी और लब मजीद आंसू रोकने की सही में बेतहाशा लरस रहे थे। इसने एक नज़र सामने मौजूद यासिर पर डाली। कितनी बुरी लग रही हूँ ना मैं रोते हुए, लरसती हुई आवाज़ में पूछा तो वह गहरा सांस भरकर रह गया। अच्छा, तो तुम इसलिए किसी के सामने नहीं रोती? तुम्हें लगता है
तुम रोते हुए बदसूरत लगती हो। इसके इस्तफसार पर वो मासूमियत से सर हिलाने लगी थी। ठीक ही लगता है तुम्हें, लेकिन इसकी अगली बात पर वो रोते रोते हंसती थी। यासिर इसके गोरे गुलाबी से चेहरे को देखे क्या, वो रोते रोते हंस रही थी। वो अच्छा नहीं कर रही थी, इसके दिल को कुछ हुआ था। हंसते हुए भी बुरी लगती हो, आहिस्ता से कहा तो वो मज़ीद हंसती। फिर इसकी जानिब आंसुओं से जगमगाती आंखें लिए देखा। इसकी शहद रंग आंखों में जैसे बहुत से जुगनू चमक रहे थे। थैंक यू किस लिए? मेरी हिफाजत करने के लिए, मुझे पानी पिलाने के लिए, मेरे लिए लिफ्ट से आने के लिए। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मारिया कबाब रेड लाइट एरिया जाता है? वो वाकतन जानना चाहती थी। मुझे नहीं पता, इसने सुकून से कहा तो वो ठिठकी। लम्हे पर को नासमझी से चेहरा उठाकर इसे देखा। क्या मतलब? मैंने तो बस एक कहानी बनाई थी। हो सकता है इसका बाप वहाँ ना जाता हो। वॉट? क्यों? तुम्हें लगता है कि अदाकारी सिर्फ तुम कर सकती हो? वह इसका जवाब सुनकर सुन हो गई थी। फिर उठकर इसके पास चली आई। अगर तुम मज़ीद ऐसे करते रहे तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं तो ऐसी बेवकूफ़ी हरगिज़ मत करना। इसने दो बदो सुकून से कहा था। ज़रा जो गड़बड़ाता हो ये लड़का, इसे कोई बात हैरान नहीं किया करती थी। तुम्हें मुझ में क्या नहीं पसंद? वो दोनों एक साथ कंट्रोल रूम से बाहर निकल आए थे। सेलिना एक बार फिर से इसके पीछे थी। वो अपनी कार की जानिब बढ़ रहा था। वाजिद और मारिया का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। मुझे तुम्हारी एक भी बात पसंद नहीं है। तुम इंतहाई मादियत पसंद हो, पैसे की पुजारन, रंग बिरंगे ब्रांड से ऑब्सेस्ड, ओवर फैशन और मेकअप का बेतहाशा इस्तेमाल करने वाली, बेवकूफ़ी की हद तक मासूम हो और हर किसी से मुस्कुरा कर बात करती हो। आई हेट एवरीथिंग। कार का अगला दरवाज़ा खोलते हुए बगैर किसी दिक्कत के कहा। वो तो जैसे इसकी तफसील पर बोलना ही भूल गई थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल सकती हूँ। और इसके कहने पर वो कार में बैठते बैठते रुक सा गया था। फिर संजीदगी से गोया हुआ, कभी किसी लड़के के लिए खुद को मत बदलना। दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये जो लड़कियां करती हैं। रिश्ते सच्चाई पर बनने चाहिए। तुम्हें मुझे ऐसे ही कबूल करना होगा। तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए। अगर कोई तुमसे अपने लिए बदलने का कहे तो इस पर पानी फेंक कर वहाँ से उठ जाना। हो सके तो इसके बाल खींच लेना। तुम्हें बाल खींचने आते हैं ना? आखिर में जवाब का इंतज़ार किए बगैर अंदर बैठ गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कार जन से आगे बढ़ा ले गया। सेलिना मजर इसके जवाब पर अब तक अंगश्ते बदना खड़ी थी। फोटोशूट का वक़्त मुतय्यन करने की गर्ज से वो दोबारा नज़र अमजद के ऑफिस की जानिब बढ़ आई थी। अंदर मौजूद उमेरा साहिद को देखकर लम्हे पर के लिए इसने गहरा सांस लिया था। वो नज़र से अपने मतवक्को प्रोजेक्ट की बात कर रही थी। इसकी पुश्त सेलिना की जानिब थी। वो असर लिए बगैर आगे बढ़ आई, फिर सोफे पर आ बैठी। उमेरा ने यूं ही रुख फेर कर देखा तो लम्हे पर को ठिठक से गई। इसे सेलिना की मौजूदगी की तवक्को नहीं थी। इसने अलबत्ता मुस्कुराकर नज़ाकत से दो उंगलियां हिलाकर इसे सलाम किया था। इसने कड़वी निगाह डालकर चेहरा वापस फेर लिया था। यूविल अगले ही पल इसके सामने आ बैठा था। फिर इसे अगली शूट की जगह और औकात बताने लगा। वो अब संजीदगी से आगे चुकी, पूरे इन्हें मार्ग से इन्हें सुन रही थी। तुम्हारी शूट का थीम नज़र पाई ने खुद तय किया है। इसने मुख्तलिफ थीम्स पर मुश्तमिल कई आउटलेट्स इसकी जानिब बढ़ाए थे। वो अब हर एक आउटलेट को बगौर देख रही थी। ये सब थीम्स तो बहुत डार्क हैं। इसने चेहरा उठाकर पूछा, फिर आउटलेट्स को सामने टेबल पर डाल दिया। वो इसीलिए ताकि तुम दोबारा से इंडस्ट्री की नज़रों में आ जाओ और तुम्हारे ऊपर से ये फ्लॉप एक्ट्रेस का टैग हट जाए। आपके जवाब देने वाली उमेरा थी। शायद इसका काम ख़त्म हो गया था। वो कीमती परस हाथ पर टांगे बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार लग रही थी। इसके जवाब पर यूविल और नज़र दोनों ने गैर आरामदा निगाह सेलिना पर डाली थी। वो खिलाफ मामूल बहुत आराम से बैठी थी। अच्छा, जब भी आपको हमेशा न्यूड किस्म के थीम्स मिलते हैं, क्योंकि आपकी बढ़ती उम्र के बायस अगर आपको इस तरह के डार्क थीम्स दिए गए तो आप एक्ट्रेस कम और आपा ज़्यादा लगेगी। इसने समझकर सर हिलाया था। यूविल ने बमुश्किल थूक निकला था। तुम्हें मुझ तक आने के लिए हमेशा इंडस्ट्री में फैले डर्टी जोक्स का सहारा क्यों लेना पड़ता है आखिर? वो अंदर से पेचोताप खाती बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोली थी। इसने भी मुस्कुरा कर कंधे उचकाए। आपको देखकर डर्टी जोक्स के अलावा और किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं आता उमेरा आपा, मासूमियत से कहा, आंखें पटपटा कर। रोने के बाद इसे अपना आप बहुत हल्का महसूस हो रहा था और वह पिछली वाली सेलिना ही मालूम हो रही थी। आपा, माय बैड उमेरा जी। देखती हूँ कि कितने दिन तक तुम इन फोटोशूट्स पर जिंदा रह सकती हो। इसके कड़वे अंदाज पर सेलिना ने मुस्कुराकर चेहरा उठाया था। अब तो लगता है कामयाब होना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी नाकामी के मुंतज़िर हैं। उमेरा इसकी बात पर इस्तज़ा सा हंसी थी। जैसे तुम्हारी ख्वाहिश थी तुम कामयाब हो ही जाओगी। वो दोनों ही कहका लगाकर हंस पड़ी थी। नज़र ने अपने टाई की नोट पे साख्ता ही ढीली की थी। वो इन एक्ट्रेस को कभी नहीं समझ सकता था। मैं ख्वाहिश नहीं करती, बस काम करती हूँ। आप भी दूसरों के मामलात में अपनी नाक लाने की बजाय अगर महज अपने काम पर तवज्जो देंगी
तो हो सकता है आपकी बढ़ती उम्र नज़रअंदाज कर दी जाए। युविल का यकदम ही ताली बजाने का दिल चाहता। सेलिना के जवाबात इसके दिल को सुकून पहुंचा रहे थे। उमेरा जैसी अजीब औरत के साथ काम करते हुए इसके भी बहुत से हिसाब इस औरत के खाते में निकलते थे। उमेरा ने दांत पीसकर एक नज़र चेहरा चुकाकर मुस्कुराहट रोकती युविल पर डाली और फिर थिम थिम करती वहां से निकलती चली गई। इसके जाते ही सेलिना ने हाथ यूं छाड़े, गोया खसे कम जहां पाक का इशारा कर रही हो। देखो, तुम्हारे लिए आज भी बदले ले रही हूँ मैं, इसने युविल के झुके सर को देखते हुए कहा। तो वह मुस्कुराकर इसके आउटलेट समेटने लगा। ये हमारी मजबूत सेलिना, नज़र ने इसे सराहा था। इसने माथे तक हाथ ले जाकर इन्हें सलाम किया। अगर कोई एक्ट्रेस आपको टफ टाइम दे तो बस मुझे इशारा कर दीजिएगा, ऐसी तबीयत साफ करूंगी कि नस्लें याद रखेंगी इनकी। इसने नज़र को भी अपनी खिदमात से आगाह किया था। वो यकदम ही हंस दिया था। अब बताएं, इतने डार्क थीम्स क्यों मुंतखब किए हैं मेरे लिए? इसके पूछने पर युविल पीछे हो बैठा था, ताकि किसी भी देखने वाले को तुम काबिल तरस ना लगो, बल्कि तुमसे आती वाइब्स दिपिच सेलिना वाली हों, जो मर तो सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। इसने एक निगाह दिलचस्पी से इन थीम्स पर डाली थी, फिर बरस हाथ पर डालती उठ खड़ी हुई। मुझे थीम्स पर कोई एतराज़ नहीं, ज़रा इन्हें भी तो पता चले कि सेलिना किसका नाम है। बाय नज़र भाई, चलो युविल, चलकर कॉफ़ी पीते हैं। वो दोनों उठकर नज़र के ऑफिस से बाहर की जाने पड़े तो वह पीछे गहरा सांस भरकर रह गया। सेलिना कभी नहीं बदल सकती थी, और सच तो ये था कि वो इसे ऐसे ही पसंद थी, शिफाफ और कभी कभी मुस्कुराकर तंज करने वाली, जज्बाती और अपने काम से मुखलिस, बेवकूफ़ और मासूम। वाजिद ने इसे बाजू से घसीटते हुए लाउंज पे रखे सोफे पर धकेला था। इसकी आंखें शिद्दत जज्बात से सुर्ख पड़ी थी और चेहरा तमतमा रहा था। मारिया की हालत भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। तुम मुझे टेल कर रही हो, मुझे टेल करती रही हो तुम। वो इस पर ठाड़ा था। जवाबन वो भी उठ खड़ी हुई, फिर इसके मुकाबले आई। वो जख्मी लग रही थी। ये बात तुम्हें अपनी पिछली महबूबा के पास जाने से पहले सोचनी चाहिए थी। तुमने कहा था कि तुम इससे राब्ते में नहीं हो, तुम इससे नहीं मिलते, तुम इससे दोबारा कभी नहीं मिले। फिर ये सब क्या था? तुम वहाँ उस पार्किंग एरिया में क्या कर रहे थे? वो भी इतनी शिद्दत से इस पर चिल्लाई थी। वाजिद ने बदसतूर तेज़ होते तनफ़्फ़ुस के साथ इसे नफरत से देखा। मैं उसकी ज़िंदगी सहल बनाने गया था। क्यों? क्या लगती है वो तुम्हारी? अगर वो कुछ लगती है तो फिर मैं कौन हूँ तुम्हारी? मुझे और अपनी औलाद को छोड़कर तुम इस बाजारी औरत से क्या लेने गए थे? इसके अल्फाज का चुनाव बहुत घटिया था। घर के मुलाजिम दीवारों के साथ कान लगाए सुनने लगे थे। इसकी ज़िंदगी मेरी वजह से तबाह हुई है, वो इस हालत में मेरी वजह से पहुंची है। अगर मैं इस पर लगे इल्ज़ामात रद्द कर देता तो किसी की मजाल नहीं थी इसे इस सब में घसीटने की, लेकिन मेरी बुज़दिली ने इसे जलील कर दिया। मैं इस गिल्ट से आज़ाद नहीं हो सकता। मैं इससे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहता हूँ, इसने सुर्ख आंखें लिए तेज से कहा था। मारिया का सांस थोंकने की मानन चलने लगा। इसका दिल किया कि इस दुनिया और इसमें पलती हर शय को आग लगा दे। इसने एक झटके से वाजिद का गिरेबान झपटा था। वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती वाजिद हसन, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम्हारी सियासी साख और कैंपेन तबाह होकर रह जाएगी। तुम्हें इस 2 टके की लड़की की बजाय मेरे साथ ये दुनिया फतह करनी चाहिए। तुम्हें मेरा साथ मांगना चाहिए। तुम्हें मेरी कदर करनी चाहिए। तुम्हें सियासत के इस बुलंद मुकाम तक लाने वाली वो नहीं, मैं हूँ। वाजिद ने अगले ही पल एक झटके से इसके हाथों को परे किया, फिर सिलकती निगाहें इस पर जमाई। तुम एक इंतहाई घटिया सोच रखने वाली सिख औरत हो। पहले तुम्हें महज बर्दाश्त करना पड़ता था, लेकिन अब गुजरते वक्त के साथ तुम नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हो। मैं वहाँ उससे रिश्ते इस्तवार करने नहीं गया था, मैं उसकी मदद करने गया था। फाड़ में जाए वो और उसकी ज़िंदगी। वो थाड़ी थी। वाजिद को इसकी जहनी हालत पर शक सा होने लगा था। अब तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगी मैं, अब इस मामले को मैं खुद देखूँगी। वो अगले ही पल तेज़ी से मुड़ी, लेकिन वाजिद ने इसका हाथ कोहनी से थाम लिया था। इसने इसी तेज़ी से मारिया को अपनी जानिब घुमाया था। तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी, वो इसे तनबीहा कर रहा था। मारिया ने नफरत से इसका हाथ झटका था, फिर इसी तेज़ी से आगे बढ़ गई। वाजिद ने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा। इसने एक गलत इंतखाब किया था। इसने गलत वक्त पर गलत फैसले लिए थे और अब इसे इन फैसलों के खमियाजे सदा भुगतने थे।